Hello friends, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 10, subject Social Science, chapter number 14, Transportation, Communication and Trade, part 2. So friends, in last video we talk about road transport. In that we discuss traffic problems and some of the solution to remove the traffic problem. Now here in this video we are going to talk about railways and airways and different other kind of means of transport. With that we discuss communication means and the trade. So before I start video I would like to tell you that like the channel, subscribe the channel, like the video and press the bell icon. So today's topic is railway. So we all know that railway is the lifeline of our country. Now, what is the thing about railway that we first understood? So, railways were first introduced to India in 1853 from Bombay to Thane. In 1951, the system were nationalized as one unit. The Indian Railways becoming one of the largest network in the world, and today Indian Railway is the world's seventh largest commercial or utilitarian employer by number of employees with over 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़। तो इंडिया में जो रेलवे की स्टार्टिंग हुई थी 1853 में डेलहाउजी गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे हुई थी। 1951 में इसे एक गवर्नमेंट अथॉरिटी यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया और आज की डेट में जो इंडियन रेलवेज़ है वो सेवन्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में और मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़ इंडियन रेलवे में वर्क करते हैं। तो इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन। इंडियन रेलवेज इज़ द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू कोऑपरेट in the economic field of India such as agriculture, industries, trade, service, etc. It has a major contribution in national security, peace, management, to establish cultural and geographical unity and to maintain it. India ranked first in Asia and second in the world in railways. तो अलग अलग टाइप की अब तो आज की डेट में तो रेलवेज़ का भी प्राइवेटाइजेशन होने लगा है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ है, अडानी है, रिलायंस है, ये सब अपने अपनी रेल भी स्टार्ट करने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड रिफॉर्म्स इन द सिस्टम। बाकी अब तक जो रेलवे था वो गवर्नमेंट यूनिट था। तो बुलेट ट्रेन्स का भी कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में चालू है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट पैसेंजर ट्रेन्स। So some of the premium passenger services offered through Mail Express, Superfast, Rajdhani and Shatabdi trains. About 1520 trains are run daily. Variety of services: AC first class, AC sleeper first class, AC 3 tier, AC chair car, sleeper class, ordinary chair car, जर्नी थ्रू रिजर्वेशन ओनली। तो ये अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती है। अब जो हमारे ट्रैक की बात करें तो टोटल ट्रैक किलोमीटर 1,09,221, इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक किलोमीटर्स 39,358, नंबर ऑफ ब्रिजेस 1,19,984, नंबर ऑफ लेवल क्रॉसिंग 37,143, number of passenger coaches 34,895, number of EMU coaches 4,957, other coaches vehicles 4,904, and total wagons online 2,14,760। और डीजल और इलेक्ट्रोमोटिव इंजन्स भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ डीजल लोकोमोटिव्स 4,699 and number of electric locomotive 2,930. So these are the additional information. These are not mentioned in your textbook. Now see, these are the different kind of trains and tracks. This is the Indian Railway network. This is very important map for the board examination. I am definitely sure that one of among these routes
will be asked in examination. So you have to learn all the map properly. Now see, ईयरली एवरेज जो हम ट्रैक्स डेवलप करते हैं वो है 1477 किलोमीटर। UPA 2 जो टाइप का ट्रैक होता है वो है 1520 किलोमीटर। एंड एवरेज ऑफ लास्ट 3 years NDA गवर्नमेंट में 2777 किलोमीटर्स। तो इस तरह से डेवलपमेंट अभी भी चालू है। यहाँ पे 2 अलग अलग ईयर्स के रिकॉर्ड है। एम्बिशियस टारगेट्स फॉर 2017-18 एंड अचीवमेंट्स 2016-17। इसके अलावा लॉन्गेस्ट रूट का भी हमारे पास डिटेल है। सो सी, दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ इंडिया। विवेक एक्सप्रेस कवर 4286 किलोमीटर। जर्नी टाइम इज़ 82.30 आवर्स। डिब्रूगढ़ आसाम से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का। तो ये वर्ल्ड का एट लॉन्गेस्ट रूट है। सबसे पहले मॉस्को है, सेकंड भी मॉस्को है, नाउ 9259 किलोमीटर, जिसकी जर्नी का टाइम 178 आवर्स होता है। सो दीज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच विल बी important for some kind of additional examination. So progress of railways. First railway in India started in 1853 between Mumbai and Thane. There are three types of railway in India. There are broad gauge, meter gauge and narrow gauge. The meter gauge and narrow gauge railway tracks are being converted into broad gauge in recent times. This is a big achievement for Indian railways. Due to different gauges, lot of time was wasted in traveling and transporting passenger goods. So much money was wasted. तो जितने ब्रॉड गेज होंगे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मीटर गेज में मिडल और नैरो गेज में सबसे कम। रेलवे नेटवर्क इज़ मोर dense in the states which have plain region, dense population, industrial development, intensive agriculture and have rich mineral fields. Large cities like Kolkata, Delhi, Jaipur have metro rails also. Work has started on the metro rail project between Ahmedabad and Gandhinagar. Monorail has been found very important to connect Mumbai with its suburbs. Railways is useful for the transfer of passenger and material goods. Besides, it is also useful for the speedy transfer of food grains and for forage during drought. From defense point of view, also it is useful for transferring soldiers and weapons. तो रेलवे काफ़ी यूज़फुल है कि जैसे ड्रॉट का टाइम आया तो फूड और फॉरेज भेजना हो कहीं पे जल्दी से। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो वेपन्स और सोल्जर्स को ट्रांसफ़र करना हो, तो ये सब में रेलवे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कोंकण रेलवे हैज़ प्रोवाइडेड अ गुड एग्जाम्पल बाई लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक through tunnels in the mountainous region which were highly inaccessible. तो अगर आप मुंबई से गोवा ट्रैवलिंग करेंगे तो कम से कम 22 टनल्स बीच में आती है, और ये काफ़ी यूज़फुल भी है कि ऐसे माउंटेनियस रीजन में ड्रिल करके रेलवे लाइन डेवलप करना काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, पर टाइम कितना बच जाता है। Indian Railways is considered to be excellent for time, safety and facilities, and it is being modernized very fast. The route between Dibrugarh and Kanyakumari is the longest railway route in India, जो ये आपको अभी मैप में दिखाई दे रहा है। जो विवेक एक्सप्रेस करके ट्रेन है वो यहाँ पे चलती है। अब हम बात करते हैं which is known as Vivek Express. In Gujarat, Ahmedabad is the biggest railway station. Other important railway junctions are Mehsana, Viramgam, Rajkot, Vadodara, Surat, Anand, etc. तो ये इम्पोर्टेंट जंक्शन है गुजरात की। नेक्स्ट है वाटरवेज। तो हमारे यहाँ काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन भी है, तो वाटरवेज भी काफ़ी डेवलप्ड है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन वॉज कैरिड आउट इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम.
All transactions were done through waterways when roads and railways did not exist. Compared to roads and railways, the waterways are cheaper because no expense is included in their construction or maintenance. There are two types of waterways in India: internal waterways and oceanic waterways. इंटरनल यानी जो कंट्री के अंदर होता है, और ओशियनिक जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ होता है. Internal water transportation services are developed more in Assam, West Bengal and Bihar state of Northeast India. उसका रीज़न है कि वहाँ पे जो रिवर्स है वो पेरेनियल रिवर है, यानी पूरा साल पानी से भरी हुई है, इसलिए वहाँ पे इंटरनल वाटरवेज अच्छे से डेवलप्ड है. गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग वाटरवेज एज नेशनल वाटरवेज. तो कौन से नेशनल वाटरवेज है? नेशनल वाटरवेज 1 गंगा रिवर, हल्दिया इलाहाबाद 1620 किलोमीटर्स. तो ये है यहाँ इलाहाबाद से ये हल्दिया. ये कौन से स्टेट को कवर करता है वो भी यहाँ पे है, गंगा पे है. नेशनल वाटरवे 1 1620 किलोमीटर. स्टेट सर्व्ड यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. सेकंड है नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा रिवर. तो ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर वाला, ये 891 किलोमीटर. इसमें कौन से स्टेट कवर होते हैं? तो आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय. फिर है नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कैनल. तो वो भी हम देख लेते हैं. ये यहाँ पे ये कोलम कोट्टापुरम 250 किलोमीटर केरला को सर्व करता है. नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी कृष्णा रिवर, ये है. काकीनाडा पुडुचेरी के बीच में 1778 किलोमीटर. तमिलनाडु और पौंडीचेरी को वो यूज़फुल है. और नेशनल वाटरवेज 5 ब्राह्मणी रिवर, तो वो है यहाँ पे ये वाला, जो डिस्टेंस कवर करता है 588 किलोमीटर. इसमें ओडिशा और वेस्ट बंगाल है. और वाटरवे नंबर नेशनल वाटरवे 6 यहाँ पे है. ये एक्स्ट्रा आपको दिखा दे रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. लखीपुर टू भंगा इन प्रोसेस 121 किलोमीटर, जो आसाम, मिज़ोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को अटैच करेगा. तो ये है हमारे नेशनल वाटरवेज. अब ओशियनिक वाटरवेज की अगर हम बात करें, रिवर कैनल की बात करें अगर हम, तो वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु एंड बिहार आर इम्पोर्टेंट स्टेट, जो मैंने अभी आपको बोला. और ये जो सब वाटरवेज मैंने अभी आपको दिखाए वो है. अब अगर हम बात करें ओशियनिक वाटरवेज, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ज़रा. ओशियनिक वाटरवेज जो कोस्टल रीजन में है. तो इंडिया हैज़ अबाउट 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. Along this coastline there are 13 major and about 200 minor ports. वो पोर्ट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ. चलिए, वो पोर्ट्स वाला एक मैप अभी नहीं है, फिर भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. आफ्टर Shipping Corporation of India was founded, there has been much development of national and international waterways. कंडला, मुंबई यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. कंडला, मुंबई, नवसेवा, मारगांव, न्यू मैंगलोर एंड कोची पोर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. तो यहाँ पे ये आपको सब दिखाई दे रहा है. मेन जो है कोची है, मुंबई है, और ये वेस्ट कोस्ट पे है. और कोलकाता, हल्दिया,
Paradweep, Visakhapatnam, Chennai, Tuticorin, etc. are main ports in eastern coast. तो ये विशाखापट्टनम एक यहाँ पे दिखाई दे रही, ये लाइन में जो ये कोस्ट के ऊपर जो होते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट और ये वाले वेस्टर्न. गुजरात हैज़ गॉट अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर. उसमें गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो 1600 किलोमीटर की है. कंडला इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात. गुजरात का जो लार्जेस्ट पोर्ट है वो कंडला है. भावनगर इज़ द ओनली पोर्ट हैविंग ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम. पोरबंदर इज़ अ फ्री पोर्ट फॉर द एंटायर ईयर. अदर important ports are Verawal, Sikka, Piplav, Navlakhi, Mundra, Positra, Okha and Hazira. A project is undertaken to develop Positra port. तो गुजरात में भी काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्ट हैं जो काफ़ी बड़े हैं और ये हमारा देखिए किस तरह से हम दूसरी कंट्री से कनेक्टेड होते हैं वाया सी रूट. तो यहाँ पे डिटेल से ही 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स. 95% of Indian foreign trade by volume and 70% by value moves through ocean route. तो ये हमारे ओशन रूट हैं जो सोमालिया, इजिप्ट, यूरोप तक जाते हैं, जावा, चाइना, ये सब जगह पे हम वाया वाटरवेज इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं. इसके बाद एक है एयरवेज. तो ये हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, बेंगलोर, चेन्नई, कोची, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, गुवाहाटी. It is the speediest and costliest mode among all type of transportation. Airways are used to reach distant places, remote and dense forest, and to reach those places which are not accessible easily by road. In India, the weather remains favorable for aviation almost throughout the year. In present day, airways are used more and more. तो ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे कॉस्टलीस्ट है, पर इसके थ्रू आप कोई भी जहाँ पे रोड नहीं है या तो रेलवेज़ नहीं है वहाँ पे आप इजीली कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. द एयरवेज सर्विसेज इन इंडिया वेयर एज air mail services between Allahabad and Naini. It was run by a private company. Today, Air India and other private companies provide air transportation services. तो बहुत सारी कंपनीज है, ये देखिए स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर एशिया, ये सब प्राइवेट एविएशन की कंपनीज हैं. Today, Airport Authority of India carries out the management of 127 airports, which include 15 international, 87 domestic, 25 civilian airport terminals. There are international airports such as Kolkata, Mumbai, Chennai, New Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad, etc. Pawan Hans helicopters provide helicopter service to ONGC and to government. तो इसके साथ में हेलीकॉप्टर सर्विस भी है. यहाँ पे आपने देखा है ग्रीन कलर का जो है वो सिविल एनक्लेव के लिए है, ये गोवा और वो सब है. फिर ये ब्राउन कलर जो है इंटरनेशनल है. तो ये है हमारा एयरवेज. इसके अलावा विच आर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो पाइपलाइन है. पाइपलाइन आर यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड मटेरियल्स सच एज वाटर, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर लिक्विड्स. An oil pipeline exists between Naharkatia of Assam to Nunmati, Baruni. तो यहाँ पे ये सब पाइपलाइन के बारे में मैप है. ये सब पाइपलाइन है जहाँ पे हम मिनरल ऑयल सब ट्रांसफ़र करते हैं. वन पाइपलाइन गोज़ फ्रॉम कलोल टू कोयली इन गुजरात एंड फ्रॉम सालिया टू मथुरा. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें सब पाइपलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में शायद आ सकता है, चांसेस बहुत कम है, 1% में आ सकता है. अ पाइपलाइन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फ्रॉम बॉम्बे हाई अप टू मुंबई कोस्ट. इन गुजरात नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन इन खंभात, धुवारन, कोयली, अहमदाबाद. Cooking gas is provided through pipeline to Surat, Bharuch, Vadodara, Ahmedabad, Jamnagar, Morbi, Rajkot, Gandhinagar cities.
तो अब तक पाइपलाइन जो गैस है वो कुकिंग गैस खाली गुजरात में ही अवेलेबल था। ये देखिए, जाफराबाद, जायगर एलएनजी टर्मिनल, डभोई एलएनजी टर्मिनल, मुद्रा एलएनजी टर्मिनल। तो अब तो ये कुकिंग गैस महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में सब जगह पे है, क्योंकि ये सब साइट्स हमारी चालू हो चुकी है। तो पाइपलाइन भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाया जाता है। फिर नेक्स्ट है रोपवे। तो ये रोपवे है। In mountainous region, the summits are connected by ropeway to transport goods and passengers. There are about 100 ropeways in India. Ropeways are seen in Darjeeling, Kulu Manali, Cherrapunji, Haridwar, etc. In North India and in the mountainous region of Chennai and Malay, the ropeway services in Gujarat are available at Pavagadh, Saputara, Ambaji. Work for a ropeway has started in गिरनार इन जूनागढ़। तो खास करके नॉर्थ इंडिया में ये रोपवे ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है, इस तरह का रोपवे होता है। तो ये रोपवे सर्विस है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? तो यहाँ पे है ये स्लाइड। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड communis, which means something common. Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, and emotions through speech, signals, writing, or behavior. In communication process, a sender encodes a message and then using a medium and send it to appropriate feedback using a medium. That is called communication. टेक्स्ट बुक में क्या है? तो द अरेंजमेंट टू सेंड और टू कलेक्ट information from one place to another is called communication. The communication system has provided extremely useful in routine life for relief and rescue work at the time of natural hazard like flood, drought, cyclone, tsunami. तो जब भी कोई नेचुरल क्लेमिटीज़ आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग काफ़ी सारी हेल्प कर सकते हैं। The communication system plays an important role in the economic, social and cultural progress and for maintaining national integration and unity. तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट का, वैसे ही कम्युनिकेशन है। जितना कम्युनिकेशन स्पीडी होगा उतना डेवलपमेंट भी स्पीडी होगा। इन एंशियंट टाइम्स मैसेजेस वर सेंट बाय प्लेइंग द ढोल, बाय स्मोक, बाय पिजन्स एंड थ्रू अदर एनिमल्स। तो पहले के ज़माने में जब मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, सैटेलाइट नहीं थे, तो ये सब तरीके थे कि ढोल बजाते थे, स्मोक स्प्रेड करते थे, पिजन्स को भेजते थे, कोई अलग एनिमल को भेजते थे। इन मॉडर्न कम्युनिकेशन, मेल सर्विस, टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन, स्मार्टफोन एंड सैटेलाइट हैव मेड द कम्युनिकेशन वेरी स्पीडी एंड ईजी. And that is why, due to this development of the communication in this corona period, you are learning your syllabus at your home. You are using mobile. We also prepare our videos and all the things on mobile. So this is the benefit effect of the communication. Science and technology have contributed very much in developing the field of communication. Today we can see all important events live. Communication can be divided into two parts: individual communication and मास कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स है, ये सब आता है। इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स आर द इफेक्टिव अमोंग इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम। ईमेल, ई कॉमर्स, एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्सेट्रा हैव बिकम वेरी फास्टर ड्यू टू इंटरनेट। आज की डेट में हमें बैंक में या लाइट बिल या गैस बिल कुछ भी भरने जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द वर्क डन फ्रॉम द मोबाइल वाया इंटरनेट। मोर ओवर, there has been a revolution in telecommunication through various applications on social media. Villages also remain in live contact with people locally and in abroad. तो आज की डेट में फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, कितनी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी से भी कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो दीज आर द इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ मास कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये है मास कम्युनिकेशन सिस्टम। Mass communication is the process by which a person, group of people,
or large organization creates a large message and transmit it through some type of medium, a large uh, anonymous ऑडियंस. तो जैसे अभी लाइव लेक्चर होते हैं जूम पे या तो गूगल मीट के ऊपर. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मास कम्युनिकेशन कि एक टीचर घर पे बैठे बैठे 100-150 बच्चों को पढ़ा रहे हैं. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन. There are two medium in mass communication system. One, print media, which includes newspaper, magazines and pamphlets, and second, electronic media, which includes Akashvani and Doordarshan. Prasar Bharati is the autonomous body of transmission in the country. Its two divisions are Akashvani and Doordarshan. There are 415 radio stations in the country today. It broadcasts programs in 23 languages. क्यों 23 languages में? क्योंकि 23 languages recognized by our constitution. It can be used conveniently in the most remote area also. It becomes an important unit for contact at the time of natural disaster. With use of satellite, Doordarshan news, weather reports and programs on entertainment and education are also telecast. Today, many private channels also have started programs like दूरदर्शन. तो मास कम्युनिकेशन साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी एडवांस हो चुका है. अब एक और है सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो सैटेलाइट किस तरह से वर्क करता है वो यहाँ पे मैंने ये स्लाइड के थ्रू आपको दिखाया कि सैटेलाइट से सिग्नल्स इस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं. यहाँ पे भी आप देखिए कि ये मॉडेम होता है, वहाँ पे रिसीव होता है, फिर सिग्नल सैटेलाइट को सेंड किया जाता है. देखिए इंटरनेट की वजह से आज की डेट में सब कुछ इजी हो गया है. Artificial satellites have their own communication skill, but along with that, it also controls other mediums of communication. The Indian National Satellite, INSAT satellite launched by India, are a multi-purpose system which is helpful to Doordarshan for the forecast of weather, cyclone, thunderstorm, warning for disaster, research and other telecasts. Besides, there has been a development of indigenous polar satellite launch vehicle PSLV through the Indian Remote Sensing Satellite IRS. तो ये IRS है, कुछ इस तरह का दिखता है, सोलर पैनल लगी हुई है. और आप भी ऐसे घर पे डेमो सैटेलाइट के बनाना सीख सकते हो एंड यू कैन डेवलप योर स्किल. फॉर दैट यू कैन विजिट टू यूट्यूब एंड बाय वॉचिंग दैट वीडियो यू लर्न समथिंग न्यू. अब्दुल कलाम जी जो थे वो इसी तरह से सब कुछ सीखे थे. जो मिसाइल उन्होंने बनाया, देखिए ये जो PSLV का नाम दिया गया है यहाँ पे, वो रॉकेट इस तरह का दिखता है. ये है, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं. मैं इसको स्क्रीन को सीधा करके दिखा सकता हूँ. यस, ये देखिए. So you can also prepare this kind of rockets at your home and you learn the technology. साइंस में हमें इंटरेस्ट लेना ही होगा if we want to make India the super power nation. So this is the satellite communication. आज तो बहुत सारे सैटेलाइट हैं. सबसे पहले जो हमने सैटेलाइट 1973 के आजू बाजू हमने लॉन्च किया था, आर्यभट्ट, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया. उसके बाद तो बहुत सारे, आज तो एजुकेशनल सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अलग अलग जो नीड्स होती है उसके हिसाब से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं. अब ये सब का सीधा इफ़ेक्ट होता है ट्रेड के ऊपर. तो ट्रेड क्या है? तो मीनिंग, ट्रेड बिटवीन टू और मोर नेशन इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. फॉर एग्जांपल, इंडियाज ट्रेड विद USA, जापान, फ्रांस, पाकिस्तान एक्सेट्रा इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में भी bilateral or multilateral trade between two countries is called as bilateral trade. Trade among many countries is called multilateral trade. तो ट्रेड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक तो इंटरनल ट्रेड जो कंट्री के अंदर होता है, और सेकंड जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड जो अदर कंट्रीज़ के साथ होता है.
India is a vast country. At some places there are mountainous regions, coastal plains, and desert. Same type of diversity is seen in climate, vegetation, mineral resource, and energy resources. There are different crops in every region and also the difference in industrial output. As a result, there are two types of trade system in the country, internal trade and international trade. तो इंडिया की ट्रेड पैटर्न आप देख लीजिए. According to the Department of Commerce, the 15 largest trading partners of India represent 62.1% of Indian import and 58.1% of Indian export as of December 2010. India's total merchandise trade has increased over threefold from $252 billion in 2006 to $794 billion in 2012. Both export and import have trebled during this period. Today, India's scenario is that piece by piece we are establishing a lasting partnership that's uh, equipped to tackle today's global challenges. India and other countries must also keep working together on major global challenges such as addressing the drivers of climate change that have critical implication for every nation. तो आज इंडिया वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा मार्केट है. देखिए हमारा इंपोर्ट कितना है 235 बिलियन का और एक्सपोर्ट कितना है 142 बिलियन का. अब ये डिजिट हमें चेंज करना, हमारा एक्सपोर्ट इतना होना चाहिए और इंपोर्ट कम हो जाना चाहिए, तब जाके इंडिया पावरफुल नेशन बन सकेगा. इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है एक यहाँ पे. 50% इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स, लार्ज इंक्रीज इन वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, distribution of GST based among states closely linked to size of their economies, strong correlation between export performance and state standard of living. India's largest firm account for a much smaller share of export than in other comparable countries. India's formal sector is substantially greater than currently believed. तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहा है कि सब लोग ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, सब लोग ज़्यादा ऐड हो रहे हैं. फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड. द commodities available in excessive quantity of one state is transferred to another state and vice versa. This is known as internal trade. For example, Punjab produces more wheat, so it exports it to other state, but Punjab does not have a sea coast, so it gets its salt from Gujarat. Thus, every state exports its product. The internal trade has developed in India due to this. तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स का उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री. The system in which different countries of the world export and import their requirements can be called international trade. It is necessary to maintain trade balance in international trade. Otherwise, there would be a negative trade balance. If a country exports more than it imports, its trade balance is positive. This increases the reserves of foreign exchange of our country. If the import exceed the एक्सपोर्ट देन द ट्रेड बैलेंस इज नेगेटिव. तो जैसे मैंने वो स्लाइड में आपको बताया कि अगर इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमारे पास पैसा बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम होगा. तो अगर हमें इंडिया को पावरफुल बनाना है तो हमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ करना होगा. If the currency value of the country which increases its export increases in international market and the currency value decreases in the international market of those countries which increase their imports. तो आपकी करेंसी की वैल्यू अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी और अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है तो कम होगी. आफ्टर द liberalization policy of 1991, there have been many changes in the international trade of India. In last few years, the trade balance of India is mostly negative. In order to make this trade balance positive, the government has started Make in India. Due to this, many foreign companies will produce their goods in India and will export them to foreign countries. Now we shall
स्टडी द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड इन इंडिया। तो जितना आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो आपकी कंट्री की इकोनॉमी को फिक्स करता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो आपकी कंट्री डेवलप्ड है, और इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो डेवलपिंग है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड कंट्री का 2003 का लिस्ट है कि कोरिया कितना एक्सपोर्ट करता है, 197.6 यूएस डॉलर बिलियन में है, और इंपोर्ट 175 बिलियन डॉलर का। जीडीपी 605 बिलियन डॉलर, और परसेंटेज वाइज 61.7। चाइना 438, मैक्सिको 165। अब इंडिया का देखिए, नेगेटिव 57 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, और इंपोर्ट जो है 74 बिलियन डॉलर का, और जीडीपी 22.3 है। तो इस हिसाब से इंडिया इज कॉल्ड डेवलपिंग नेशन। अब एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करते हैं, पहले हम इंपोर्ट देख लेते हैं। व्हेन द आयरन प्रोडक्शन इन इंडिया इज नॉट सफिशिएंट, इंडिया इंपोर्ट आयरन एंड कॉपर। द डिमांड फॉर पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल एंड lubricants is more for transportation and for keeping the machines active. These are imported. We also import machines, pearls, gemstones and edible oils as per our requirement. We import these things from USA, Germany, Russia, म्यांमार, ईरान एक्सेट्रा। तो ये देखिए हमारा इंपोर्ट चार्ट देखिए कि जेम्स ज्वेलरी 16.7%, इलेक्ट्रॉनिक्स 10.6, केमिकल 9.6, मशीनरी 8.1%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 27.7%। अब ये सब जो है वो कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो इसकी वजह से हमें जो पेमेंट करना है वो ज़्यादा है। अब उसके सामने हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो देखिए रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते हैं 39%, उसकी वैल्यू कम होगी। इंटरमीडिएट 3%, कंज्यूमर गुड्स 14%, और कैपिटल गुड्स 4%। उसके सामने हम इंपोर्ट क्या करते हैं, ये दोनों टेबल साथ में। तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर से मंगवाते हैं 44%, सबसे ज़्यादा है। इंटरमीडिएट गुड 24%, कंज्यूमर गुड 31%, और कैपिटल गुड 1%। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है, फिर कंज्यूमर गुड्स है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम ये एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे और एक रिपोर्ट है, मेन प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड इन 2014-15, मिनरल ऑयल, एसेसरीज, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरीज, तो ये मेटल्स, अदर जो है प्रोडक्ट्स, तो ये जो सबसे कॉस्ट प्रोडक्ट है वो हम जो सबसे कॉस्टली जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो एक्चुअली में उसके कंपैरिजन में प्राइस कम है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारी बैलेंस शीट जो है वो नेगेटिव में है। Only a limited portion of the production is allowed to be exported so that its price may not increase within the country. We import raw material from few things, manufacture some goods from them and then export them. Indian export include iron ore and minerals, engineering goods such as cycle, fans, sewing machines, cars, railway coaches, computer software, etc. We also export chemicals and the things related to them, gemstones, hide and leather goods, cotton textile, fish and its product, handicraft, tea, coffee, jute and its products and रेडीमेड क्लोथ्स। तो मोस्टली जो हमारा एक्सपोर्ट है वो एग्रो बेस्ड ज़्यादा है, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग सिचुएशन में है। जब हमारा एक्सपोर्ट जो है, यानी हम जो दूसरी कंट्री को सेल करते हैं, वो मशीन बेस्ड ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास पैसे भी ज़्यादा आएंगे और इंडिया बिकम रिचर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यूचर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पढ़ लिख के साइंटिस्ट या क्या बनते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, नए आइडियाज़ लाते हैं, नया स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। सो दिस इज़ द थिंग ऑफ दिस चैप्टर। Here some exercises are there. You solve it by yourself. If you are having any doubt, then you can contact me. You ask your question anytime.
So I hope that you all understand everything of this chapter. This is the last chapter of geography portion. Afterwards, I'll start to upload economics पोर्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर 17 to 21. तो अब 10th के सिलेबस में आपके 4 चैप्टर बाकी है, 17, 18, 19, 20, 21, 5 चैप्टर बाकी है. दैट आई विल ट्राई टू अपलोड एज सुन एज पॉसिबल. Once again I am telling that like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.